privileged now to hear from our esteemed, eminent keynote speaker, Professor K.K. Bhasanji. Sir is a highly accomplished and profoundly decorated chemist of the country. Sir has been offered international fellowship and visiting scientist position at Stanford Research Institute and Gard Fellowship at Germany. Sir has been invited on a brain pool fellowship in South Korea. His expertise and contributions are widely recognized both in the country as well as abroad. Him being the first convener of Professor R.C. Paul National Annual Symposium, Department of Chemistry, Punjab University, Chandigarh. Sir is presently holding the Platinum Jubilee Fellowship of National Academy, Prayagraj, and also Independent Director of Nectar Life Sciences Limited, Chandigarh. We look forward to an enlightening discourse that will enrich our understanding of the fascinating world of chemistry, and for that, with folded hands, I request Professor K.K. Bhasanji, keynote speaker of the day, to kindly grace the dais. Sir. Should I say you good morning and good evening? What should I say? Anyway, my greetings to you all from Chandigarh. I take this distinct pleasure in accepting the invitation by this university. I'm thankful to Dr. S.K. Thakkar, Dr. Rampal ji, Vice Chancellor, Dr. Lavleen Mohan, Registrar of this University, Dr. S.K. Sinha, Professor O.P. Arora, and there are good friends from conveners and chairperson of different departments. I take this pleasure in accepting the invitation. I actually wanted to say you so many things, but the learned speakers have said so many things, so I don't think there is much to say about in general. I'm very happy to see your smiling faces. Unfortunately, I brought something for you, but that didn't work here because I wanted to show you so many beautiful pictures, maybe some next time. But before that, I would just like to ask you, how many of you, the students, love chemistry? Just raise hands. How many students are there who do not love chemistry? Okay. How many are there who do not know they love chemistry and they don't love chemistry? Chemistry, they raise big hands. When they say they don't like chemistry, they say like this. And those who say they do not know, they write like this. So that I can't see it. But I'm a very clever teacher, I can easily see it. Now, आप बच्चों को जब स्कूल में पढ़ते हो तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सब्जेक्ट को एप्रिशिएट करिए। होता क्या है कि आप क्लास में जाते हो, कई बच्चे कहते हैं मेरे को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, कई बच्चे कहते हैं मेरे को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती। होता है, ये नहीं है कि उनको लाइक नहीं करते, द सब्जेक्ट इज दे डोंट एप्रिशिएट। मैं आपको छोटी छोटी 2-4 बातें बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि यार हाँ, यस वी शुड बी लिटिल क्यूरियस। आप लोगों ने ये देखी है पेंसिल कभी? आप लोगों ने, बच्चे को, लोगों को खासकर, इस पेंसिल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेड पेंसिल, इजंट सो? इस पेंसिल में क्या लेड पड़ा हुआ है इस पे? स्कूल के बच्चों को तो आई जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चन, इसमें क्या होता है? जो टिप ऑफ द पेंसिल होती है, इसमें क्या होता है? क्या होता है? ग्रेफाइट। वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ग्रेफाइट? आप बच्चों में से ग्रेफाइट आपने सुन लिया। आपने ग्रेफाइट किसने देखा है? चलो, ये भी एक क्वेश्चन है। Don't feel कि I'm asking you question. I'm just making you grow curious. You understand my point? Okay.
पेंसिल के एंड के पीछे भी ये कुछ लिखा होता है, यहाँ पे छोटा सा लिखा होता है HB, देखा है आप लोगों ने? तो केमिस्ट्री के बच्चों को पूछा जाए कि HB क्या है, तो वो कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहोगे नहीं कहोगे? Am I right or wrong? Right. अच्छा, आपने मेरे को क्या बोला कि ये इस टिप वाली पेंसिल में क्या लगा हुआ है? ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट देखा ही नहीं। अच्छा चलो, जब कभी आप कोयला देखते हो या कोई सेल तोड़ते हो, उसमें कोई ब्लैक ब्लैक सी चीज निकलती है, उसको रफली क्रूडली ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, उसको थोड़ा सा लो, अपने मुंह पे अच्छी तरह दे दो 3-4 बार, तो कितने गोरे हो जाओगे आप? हो जाओगे? नहीं हो। अब यही पेंसिल लो, वो जो मटेरियल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ग्रेफाइट है। अब आप पेंसिल लेके सुबह से लेके शाम तक ऐसे करते रहो, आपका मुंह उतना गोरा होगा जितना उससे होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल आप देख रहे हो ये ग्रेफाइट नहीं है। आपको बताया गया कि ये ग्रेफाइट है, आपने तोते की तरह रट लिया कि ये ग्रेफाइट है। इसमें थोड़ी सी अमाउंट ग्रेफाइट है, सिर्फ टू द ट्यून ऑफ 5 और 10%। बाकी का क्या है इसमें? रेत, जिसको सिलिका कहते हैं। सो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ? आपको मैंने सिंपल से एग्जांपल बता दी। इसका मतलब आपके माइंड को क्यूरियस होना बड़ा जरूरी है। क्यूरियस का मतलब आपको मान HB लिखा हुआ है तो केमिस्ट्री वाले बच्चों को तुरंत एक ही बात याद आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आती है नहीं आती? हाइड्रोजन इज अ केमिस्ट्री वर्ड, बॉन्डिंग एंड कंबाइंड टुगेदर। जो HB होता है, अब एक बात बताइए, ये जो आप ग्रेफाइट देखते हैं ये सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? अब इस ग्रेफाइट की बात मत करना जो सोच रहे हो आप। ग्रेफाइट बड़ा सॉफ्ट होता है। आपने कोयला देखा, बहुत बारीक सा कोयला कर दिया जाए तो वो जो कोल होता है वेरी वेरी रिफाइंड फॉर्म, दैट इज योर ग्रेफाइट। ओके, तो उसमें हार्ड मटेरियल क्या है? फिर HB जब आप लिखते हो, H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है ब्लैक। यू अंडरस्टैंड? हार्ड क्या है? मैंने अभी आपको बताया था सिलिका। सिलिका सबसे हार्ड मटेरियल गिना जाता है। Am I right? So HB stands for hard and not hydrogen bond. Is it clear to you? So इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी चीजों को मैंने आपको प्रोजेक्शन लगाया था, but unfortunately it didn't work. You could have seen it very nicely. So अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि छोटी से छोटी चीज जो हम देखते हैं उसको हमने क्यूरियसली नोट करना है कि वो क्या चीज है। Is it alright to you? अच्छा, कई बार आपने ये भी नोट किया होगा कि पेंसिल के पीछे 2H लिखा होता है या पेंसिल के पीछे 3H भी लिखा होता है। आपने देखा है कभी बच्चों ने? जब 2H लिखा होता है इसका मतलब क्या है? उसमें H पार्ट ज्यादा है, B पार्ट क्या है? कम है। तो वो पेंसिल गूढ़ा लिखेगी या फिक्का लिखेगी? फिक्का लिखेगी, क्योंकि उसमें हार्ड पार्ट ज्यादा है और ब्लैक पार्ट क्या है? कम है। So you should remember it is a very simple example which I wanted to talk to you people. Is it okay? Now, उसके बाद में आपको कई ऐसी बातें बताता और बताऊंगा भी अभी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि एक वर्ड होता है जुगाड़। आपने सुना है कभी? मैं आपको प्रोजेक्शन में बहुत अच्छी तरह पिक्चर्स के साथ दिखाता है, पर आपको वैसे ही दिखाना ही चाहता हूँ। जुगाड़ आपने सुना है कभी? यदि यही वर्ड जुगाड़ इंग्लिश या अमेरिका में जाके कहोगे या उनको कहोगे कि आप देखो, तो वो जुगाड़ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे जुगाड़। क्या बोलेंगे? जुगाड़। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू, जैसे डॉक्टर ने भी ये कहा कि हम बड़े ओल्ड लोग हैं। ओल्ड लोग की अपनी केमिस्ट्री होती है। जब मैं स्टूडेंट होता था, जो कैपिटल F होता है पीरियोडिक टेबल में, उसका क्या नाम है? फ्लोरीन। और जो कैपिटल C स्मॉल l होता है उसको क्या कहते हैं? और जब हम पढ़ा करते थे तो हमारा टीचर बहुत गुस्सा करता था, वो कहता था फ्लोरीन, फिर वो कहता था क्लोरीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत था, ये नहीं सोचना, क्योंकि हम ओल्ड जनरेशन जो सीखे आए हैं। अब जब मैं कभी अपना कॉलेज लेवल में गया या यूनिवर्सिटी लेवल में गया तो मेरे टीचरों ने मेरे पूछा कि ये क्या है, तो मैंने बोलना फ्लोरीन, फिर मैंने बोलना क्लोरीन, तो बड़ा हंसते थे मेरे को।
तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। सो कभी भी कोई भी लैंग्वेज हो वैसा ही बोलिएगा। तो जब आपने एक वर्ड होता है केमिस्ट्री में, डॉक्टर अरोड़ा साहब बड़े खुश होंगे, एक वर्ड होता है RMGX केमिस्ट्री में, आपने सुना है? किसने सुना है? हाँ, आप बताइए बेटा RMGX क्या होता है? ग्रेट मैन। अब मैं आपको छोटी सी बात यही बताने लगा कि मैं अपनी इंडिया से जब इंग्लैंड गया पहली बार, तो जिस प्रोफेसर के साथ मैं काम कर रहा था तो उसने मेरे को ऐसे पूछा कि डॉक्टर वसीम व्हाट आर यू डूइंग? मैंने उसको कहा कि आई एम प्रिपेयरिंग, क्या बोला है आपने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर वो ऐसे ऐसे करने लगा। मैंने क्या बोला उसको, मैंने क्या बना रहा हूं मैं? ग्रिग्नार्ड। तो वो उसको नहीं समझ आई। फिर मैंने हार के उसको कहा कि क्या करूं, तो उसने कहा आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए। मैंने ब्लैक बोर्ड पे वही लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? क्या लिख दिया? ग्रिग्नार्ड। तो वो हंसने लगा, कहता नो 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 आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट्स नॉट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, इट्स ग्रिग्नार्ड, डोंट डू इट लाइक दिस नाउ। आप मत ऐसे करना, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज ग्रिग्नार्ड ही है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? So science belongs to everybody. It doesn't belong to any religion, any place, something like this. So you should be very happy कि जब कभी हमने ये वर्ड यूज करना है तो हमने अपनी ही लैंग्वेज यूज करनी है। डॉक्टर ने बहुत कुछ आपको बताया, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया तो मैंने देखा कि इंग्लैंड बहुत आगे है। जब अब मैं अपने कंट्री में आके देखता हूँ तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट। आप लोग कहोगे सर आपने देखा, हमने तो नहीं देखा, आप देखोगे आने वाले समय में। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू। अच्छा, अब आपको मैं एक वर्ड जुगाड़ बता रहा था। सुना है ना आपने जुगाड़? जब अमेरिका में जाओगे तो वो वैसे ही बोलेंगे जैसे मैंने टेढ़ा मुंह करके बोला। इंग्लैंड में जाओगे वो भी ऐसे बोलेंगे। बट यू विल बी वेरी हैप्पी टू लर्न ये जुगाड़ कहाँ से आया भाई जाए। ये इंडियन वर्ड है या फॉरेन का वर्ड है? कहाँ का वर्ड है? आप लोगों को बहुत खुशी होगी, अब आप नई इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे तो ये वर्ड वहां भी एंटर कर गया। So this is what I wanted to talk to you people कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हम ये नहीं सोचना कि जुगाड़ू है, ये है जुगाड़ है, इट्स ऑन मीनिंग। मैं आपको पूरी फिल्म दिखाता जुगाड़ के ऊपर केमिस्ट्री वाइज, पर अनफॉर्चुनेटली माय दैट क्या कहते हैं पावर प्रेजेंटेशन डिडंट वर्क, अदरवाइज आई वुड हैव शोन। अच्छा, एक और बात पूछता हूँ आपसे कि एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता आपको कि आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है? मालूम। आपको मालूम है कि रिडक्शन क्या होती है? मालूम। अब आपको एक चीज याद कराने चाहता हूँ, एक मॉलिक्यूल होता है उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। आपने सुना है? वो किस चीज का बना होता है? एक तरफ अमोनियम है, दूसरी तरफ क्या है? नाइट्रेट। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं क्योंकि आई कांट शो यू द प्रेजेंटेशन। अमोनियम नाइट्रेट जब बना था सबसे पहले 1921 में जर्मनी वालों ने बनाया था, और आपको मालूम है कि दिस कैन बी यूज एज ए फर्टिलाइजर। आप यूज करते हैं ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, बहुत सी नाइट्रोजन कंटेंट्स है। जब ये अमोनियम नाइट्रेट पहली बार बना तो उन्होंने बना के फैक्ट्री वालों ने बाहर रखना शुरू कर दिया। जब बाहर रखना शुरू कर दिया कि तो टनों के हिसाब से बनाया, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम वो एक पहाड़ बन गया। क्या बन गया? पहाड़ बन गया। था वो पाउडर अमोनियम नाइट्रेट। तो अब वो क्या करें? किसानों को चाहिए अमोनियम नाइट्रेट, तो फिर सोचने वालों ने क्या किया कि इसके नीचे डायनेमाइट लगा दो। क्या लगा दो? कितना? थोड़ा सा 4-5 ग्राम। कितने अमोनियम नाइट्रेट के पीछे? 4500 टन के पीछे। तो उन्होंने क्या किया, अमोनियम नाइट्रेट जो बनाया था उसके नीचे थोड़ा सा लगा दिया डायनेमाइट, ताकि क्या हो जाए, वो उड़ जाए, पाउडर बन के फिर वो नीचे आ जाए। तो आपको मालूम है क्या हुआ? 500 पीपल डाइड। फैक्ट्री का मालूम ही नहीं है कि कहाँ गई। इसका क्या मतलब है? अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये जुगाड़ की बात ही बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि इतना एक्सप्लोसिव कंपाउंड
अब अमोनियम नाइट्रेट आप लोग यूज करते हो, हम उसको निशागर कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट को हम इतना एक्सक्लूसिवली यूज करते रहते हैं, बट इट इज ए वेरी वेरी टॉक्सिक कंपाउंड। अब मैं आपको पूछूं बच्चों को कि ये क्यों टॉक्सिक है? क्योंकि इसमें कितनी दो चीजें हैं, एक है अमोनियम और दूसरा क्या है, नाइट्रेट। बेटा देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, आपने पढ़ी है स्कूलों में। अमोनियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, और नाइट्रेट क्या है, स्ट्रॉन्ग। कभी दो चीजों को मत मिलाना जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और दूसरा क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब अमोनियम नाइट्रेट तो सेपरेट कर नहीं सकते, तो फिर क्या किया, पंजाब के किसानों ने कहा, हरियाणा के किसानों, पंजाब, ओल्ड पंजाब की बात करता हूँ, तो उन्होंने कहा ये लोगों को तो समझ ही नहीं, ऐसे लगा दिया, इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देते। किसमें, अमोनियम नाइट्रेट में, ताकि अमोनियम और नाइट्रेट आपस में कंबाइन ही ना हो, बीच में सेपरेट होते रहे। इसको कहते हैं जुगाड़। क्या कहते हैं, ये वो जुगाड़ है जो हिस्टोरिकल मिस्टेक जर्मन वालों ने करी थी 1921 में। सॉल्व किसने करी, हम इंडियंस ने। So this is what I wanted to talk to you कि ये मत सोचिएगा कि we are backward, ऐसा कुछ नहीं है। बैकवर्ड होंगे, होके आगे फॉरवर्ड होता है। So these are some of the things which I wanted to talk to you in a sense कि आपको अच्छा लगे क्या होना चाहिए। अब एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको, ये कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा, आप देख नहीं पा रहे होंगे कि आप शुगर लेते हो तो उसको पानी में डिसॉल्व करते हो, तो कितनी शुगर कितने पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। मानो 10 ग्राम शुगर है, उसको मैंने 100 ml में डिसॉल्व करना तो हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं 100 ग्राम में 100 ग्राम ही शुगर डिसॉल्व करना चाहूंगा, 100 ग्राम शुगर में 100 ml में पानी में डिसॉल्व करना चाहूंगा तो हो जाएगी, नहीं मिलेगी। बट केमिस्ट्री वालों ने ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हैं कि आप जितना चाहो किसी चीज को डिसॉल्व कर सकते हो। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं, वो नोट कर ले। एक मॉलिक्यूल होता है, उसको कहते हैं अमोनियम एक्रिलेट। क्या कहते हैं उसको, अमोनियम एक्रिलेट। आपने जैसे होता है ना एसिटिक एसिड, ऐसे एक्रिलिक एसिड होता है, आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, अमोनियम एक्रिलेट। उसको आप 100 ग्राम पानी में आप थोड़ा सा भी डालो, सिर्फ कितना डालना है आपने, सिर्फ 1 ग्राम। यू अंडरस्टैंड, मतलब आप 1 ग्राम पानी में आप कम से कम भी 30 ग्राम के करीब उसको डिसॉल्व कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको बड़ी ध्यान से बात याद करवाता हूँ। आप लोग तो जब आपने देखा कि बच्चों को बेबीज को नैपिस लगाते हैं, देखा है आप लोगों ने, वो नैपिस कितने भारी होते हैं, बड़े हल्के से होते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो उसमें नैपिस में एक कंपाउंड डाला हुआ होता है, वो क्या करता है, जब बच्चा शुशु करता है, से जितना भी बच्चे ने शुशु किया वो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। उस कंपाउंड को कहते हैं अमोनियम एक्रिलेट और मेटाक्रिलेट। ये वही कंपाउंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इन्होंने क्या किया, ये अमोनियम मेटाक्रिलेट जो कंपाउंड है, इसको those who can see it, can you see सर इसमें गोली गोली सी नजर आती है, नहीं आती? अच्छा नहीं, तो इसको आप डिसॉल्व कर लो। अब आप डिसॉल्व करने के बाद आपने कहीं, मानो आप अपने घर में बैठे हो और आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया 1 महीने के लिए, आपके गमले हैं, गमलों में पानी कौन देगा, उसमें ये डाल दो, तो क्या होगा, 100 ग्राम पानी जो है इसमें चूसा हुआ है, तो वो 100 ग्राम पानी धीरे धीरे गमलों को मिलता रहेगा, तो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड। सो ये है अमोनियम मेथैक्रिलेट। अच्छा, आप लोग साइकिल चलाना पसंद करते हो? आप लोग साइकिल चलाना पसंद करते हो या कार चलाना पसंद करते हो या स्कूटर चाहते हो? बोलिए। कार चाहिए, कार चाहिए। अब देखो कार इंडस्ट्री भी कितनी चालाक है। कार इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, पहले जो कार थी 1 लाख रुपए की, तो उन्होंने उसके रेट बढ़ा दिए। उन्होंने कहा भी आप इसने रेट क्यों बढ़ा दिए, 1 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने इसमें वो सेफ्टी मेजर लगा दिए। सेफ्टी मेजर, यू अंडरस्टैंड, बैलून्स।
कार्बेलून सुना है ना आपने? अच्छा, यदि आप ध्यान से सोचो, दो जो कार्बेलून्स होते हैं, अब आप केमिस्ट्री के बच्चे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए वो कार्बेलून्स में क्या होता है। हाँ, somebody speaking. नाइट्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, बोलो बोलो, कोई बोल रहा है? नाइट्रोजन नहीं, उसमें कुछ कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन तो एक एलिमेंट है ना, उसमें एक छोटा, हाँ बोलो, कोई बोल रहा है बच्चा? हाँ बेटा, सोडियम एजोइड सर, सोडियम एजोइड हाइड्रोजन एजोइड नहीं, सोडियम नहीं, सोडियम जो आप कह रहे हो उसके पास पास है, वो नहीं है जो आप कह रहे हो, उसको कहते हैं सोडियम एजाइड। क्या कहते हैं? सोडियम एजाइड। अब आपको पूछना है अपने मन से कि वो सोडियम एजाइड क्यों डाला है। सोडियम एजाइड इसलिए डाला है कि वो सोडियम एजाइड को थोड़ा सा भी ऐसे हिट करो तो वो कंपाउंड टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। टूटने से क्या गैस निकलेगी? नाइट्रोजन गैस निकलेगी। जब कभी एक्सीडेंट होता है, जब कभी एक्सीडेंट हुआ तो फिर क्या होता है उसमें? वो कंपाउंड टूट जाता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। नाइट्रोजन जो गैस निकलती है, वो जो बैलून होता है वो क्या करता है? भर जाता है। और भरने से साथ क्या होगा? तो बैलून आपको हिट करेगा, आप ऐसे हिट नहीं करोगे। यू अंडरस्टैंड? सो अब आप कार चलाना पसंद करोगे, महंगी कार चलाना पसंद करोगे या सेफ कार चलाना पसंद करोगे? इट इज बेटर टू ड्राइव सेफ कार rather than expensive cars. You understand my point? So these are some of the things which I just wanted to talk to you. अब सबसे पहले और सबसे लास्ट में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो टीचर जिनसे मैंने पढ़ा था, पांचवा मेरे को मेरे टीचर ने नहीं बताया। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। पहला क्या है? मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, एथिकली एंड साइंस करने के लिए यू हैव टू बी प्रेजेंट रेगुलरली। So these are the 5 things which you should ask. बोलो बोलो, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, आपको समझ आ गई थी? मैंने ये पूछा कि इतना बड़ा कमरा है, इसमें ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, यही पूछा मैंने, और तो कुछ भी नहीं पूछा। एनी बच्चा कोई बता? अच्छा, मैं अब आपको बताऊंगा तो आप सहमत होगे। चलो पहले आई स्टिल वांट टू आस्क यू। आप बेटा बताओ लास्ट। हाँ, यस। find the value of x first. क्या था? क्या था मेरे? 104. 104 104. क्या? Pressure of oxygen. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कितने एटमॉस्फेयर बेटा? क्या सर? कितने एटमॉस्फेयर? हाउ मेनी एटमॉस्फेयर? हाउ मेनी एटमॉस्फेयर? 1 104 क्या? ATM. देखो, सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग इन सच ए नाइस रूम, so we should remember that there are so many gases in this room, and how many important gases are there in this room, which are majorly gases. One is oxygen, the other is nitrogen. How much is oxygen? How much is oxygen? 22%. How much is nitrogen? 77%. So इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन, यदि हम 1 एटमॉस्फेयर लें, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को दोनों को मिला के कितने एटमॉस्फेयर बनना है? कितने एटमॉस्फेयर बनना है? 1. But if I happen to ask you pressure of oxygen in this room, तो आप क्या कहोगे? 0.22 atmosphere. तो आपको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की इंप्लीकेशन भी आनी चाहिए। Is it okay? अब एक और क्वेश्चन है कि how many of you know that scientists all over the world get the highest prize, which is called Nobel Prize? ठीक है? नोबेल प्राइज कौन से मंथ में दिया जाता है?
अक्टूबर। एक आपको ईयर पूछता हूँ, 2011। 2011 is a very very important year in the history of chemistry. That is called International Year of Chemistry. आपको आइडिया है? देखो बेटा, इंटरनेट का जमाना है, यू शुड ट्राई टू गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। 2011 में मेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिले को 100 ईयर हो गए थे, 100 ईयर सेलिब्रेशन की गई थी। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। सो आई थिंक एनी क्वेश्चन यू हैव, एनीथिंग टू आस्क, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। I will show you now the compound which I called about oxidation and reduction. आप बच्चों में से एक बच्चा आ जाए, आ जाओ, कम ही आ जाओ। देखो बच्चे, ये कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? व्हाट इज द कलर? देखो ध्यान, क्या कलर है? नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग अबाउट इट। इसमें डाल। Now you will notice that what is the color originally of this compound? अब आप सीधे डरोगे तो नहीं? Can you see something? Can you see something? What is this now? ये वही रिएक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको कहते हो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपने नोट किया कि ओरिजिनली कलर क्या था कंपाउंड का? ऑरेंज। एंड व्हाट इज द कलर नाउ लेफ्ट? This is green. I think आप दूर से नहीं देख सकते। This is green. Can you see it? This is green in color. Is it okay? अच्छा, इसमें है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम मैंने आपको क्या बोला था? Is a strong reducing agent और डाइक्रोमेट is a oxidizing agent. So जब कभी दो रिएजेंट को इकट्ठा करोगे, एक ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा रिड्यूसिंग, तो क्या होगा? There will be a very strong interaction. यदि ये अमोनियम नाइट्रेट होता, फिर क्या होना था? Blast. There would have been blast. Is it okay? Now, another interesting thing for you. Can you see what is this? हमारी बेल्ट में बहुत कॉटन होती है, ठीक है? Now,
You see here, this is your ordinary cotton. ठीक है बेटा? Can you see it? और कैसे चल रही है ये? बड़े 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 की तरह चल रही है, बुझी बुझी सी. You understand? And it is leaving so much residue behind it. Can you see it? Oh. अब यदि मैं इसी कॉटन को डेरिवेटाइज कर दूं, इसी तरह से इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, तो क्या होगा? It will burn like anything. ठीक है? Now you see here yourself. ये निकालिए. इसे जला के माचिस. अब मैंने ये कॉटन ली, इस कॉटन को मैंने क्या किया हुआ है? मॉडिफाई किया है, इसमें नाइट्रेट डाला हुआ है. ओके, नाउ माचिस Can you see it now? Nothing is left, practical. So this is again a beautiful example of oxidation and Reduction. So आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैंने हल्का सा इशारा किया. If I had a chance to see you some other time, I will show you through the transparencies. Then you will be involved in that. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. There are no words to thank you, and I would just say one thing, that all the 3 sessions of the inauguration have actually come a full circle, because Professor Om Prakash ji said that practicals are very important. Then Gakhar sir said that it's important to skill our students and then to teach them how to upskill and then reskill themselves. And then it came a full circle with Bhasin sir when he actually did the experiments in front of the students. So on behalf of my university, all the participants who are present here, we are very, very thankful to you, sir, for this amazing session that we had with all 3 of you.